So everyone just pay attention. Question number 6 में doubt है. So look here everyone. So the common ratio of a finite GP is 3. ठीक है? एक GP का common ratio दिया हुआ which is 3. उसके बाद the last term of that GP. So let me denote that last term with n. And what is the value of the last term? It is 486. Question में ये बोला जा रहा है find the sum of, sorry, if the sum of these terms is 728, find the first term. मतलब these terms मतलब क्या होगा बताओ. ये जो last term है मतलब जो पहला term, second term, third term and so on, मतलब nth term तक का जो sum है वो कितने के बराबर है? 728 के बराबर. मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू 486 है और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इट 486? Yes, sir. And the sum of these terms is 728. और यहां पे बोला जा रहा है फाइंड द फर्स्ट टर्म. क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है? फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस जीपी. तो सबसे पहला चीज, लेट a be the first term of the GP. मतलब इस GP का गिवन GP का पहला टर्म हम लोगों ने क्या चीज से डिनोट किया? स्मॉल a से डिनोट किया. Now, if nth term is 486, can I say that a into r to the power which is 3 to the power n minus 1 is equal to 486? Please check here once everyone. हम लोग को यहाँ पे कॉमन रेशियो तो पता ही है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो जीपी का मुझे लास्ट टर्म और जिस जीपी का मुझे एन टर्म्स का समीशन पता है उसका मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म नहीं पता है. ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म को स्मॉल a से डिनोट कर दिया. अब देखो ये जो पहला कंडीशन है कि nth टर्म का वैल्यू 486 है, उसको लेकर के हम लोगों ने एक इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं. तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना. Now can I write 3 to the power n minus 1 as 3 to the power n divided by 3 to the power 1? Because you will know that x to the power n divided by x to the power n is x to the power m minus n. Everyone note down. हम लोगों को पता है कि x to the power m by x to the power n को क्या लिख सकते हैं हम लोग? x to the power m minus n. तो x to the power m minus n को भी तो हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है कि नहीं? So ये रहा देखो 3 to the power n minus 1 is 3 to the power n divided by 3 to the power 1. Now cross multiply. So we have a into 3 to the power n equals to 3 times 486. So what is 3 times 486? 1458. 1458. Let me mark it as 1 because इसको सॉल्व करके हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते. मतलब ये हम लोग इससे ज्यादा और सिंपलीफिकेशन ये नहीं हो पाएगा. Now, the second condition which is given is that sum of first n terms is how much? 728. मतलब इस GP का पहला n terms का summation जो है वो 728 है. All right. Now, as common ratio is greater than 1, so the sum of first n terms will be given by the formula a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1. ऑलराइट. अब देखो यहाँ पे हमको निकालना है किसका वैल्यू है? a का. देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो 1 नंबर है और ये जो दूसरा हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है? a का वैल्यू. तो थोड़ा ध्यान देना एक बार. हम लोग को पता है कि a into 3 to the power n का वैल्यू 1458 है. अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दे तो यहां पे आ जाएगा a into 3 to the power n plus into minus is minus, a into 1 is a. 3 minus 1 becomes 2. Now what is a into 3 to the power n? Check here once. What is a into 3 to the power n का value? 1458. It is 1458.
Now cross multiply and solve this. Okay, so what is the value of A? It is 2. Because 1458 minus 1456 is equal to how much? The first term, which is A. Okay, is this clear, everyone? Copy it faster. Now इस वाले सम के बाद 1 से लेके 11 तक में और कोई डाउट है किसी का? 1 से 11 तक में और कोई डाउट है? नंबर 10 डाउट है किसी का? Yes, sir. 10 नंबर किसी का डाउट? यस, Yes, sir. ओके, 10 नंबर डाउट है. शो दैट इट इज अ जीपी. तो हो गया क्या तुम लोग से? शो दैट इट इज अ जीपी कैसे किया तुम लोग? बताओ तुम लॉजिक. नहीं किया ना? तो वो पूछ रहे थे तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे? Yes, sir. Okay, so tell me how you did. Sir, Tn equals So I have put the value of n as 1, 2, 3 so that I have got the means S1, S2 and S3. From there I have find out N1 means A1, A2 and A3 and then the common ratio, and the common ratio were equal. So we can say that they were in the form of GP. I mean, they are in. I mean, this particular sum up to n term represents what? A GP series. But actually, देखो इस लेवल में तुम लोग को एक और मेथड पता होना चाहिए. तो एक बार ध्यान से नोट करना, मैं जो मेथड बोल रहा हूँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो मेथड, मतलब और मैं एक मेथड बता रहा हूँ जो तुम लोगों को करना चाहिए उस मेथड से. ऑलराइट, सो एवरीवन जस्ट कंसंट्रेट हियर. So if anyone is copying, I'll just wait for you. Anyone here? कोई कॉपी कर रही है वाला सम? So note down everyone. Question number 10. See 10 नंबर में हम लोग को एक जीपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का फॉर्मूला दिया गया है. ठीक है, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है. इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब उस जीपी का अगर मुझे पहला 5 टर्म्स का सम निकालना हो तो मैं n की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूंगा? बताओ तो 5. तो मुझे उस जीपी का फर्स्ट 5 टर्म्स का समेशन मिल जाएगा. अगर मुझे उस जीपी का फर्स्ट 10 टर्म्स का समेशन चाहिए तो मैं n की जगह पे 10 रिप्लेस कर दूंगा, तो मुझे फर्स्ट 10 टर्म्स का सम मिल जाएगा. ऑलराइट एवरीवन. लेकिन इस सम में हमको प्रूव क्या करना है? बताओ, शो क्या करना है? शो दैट द सम 2 to the power n minus 1 and the sum up to n term represented by this expression represents the sum of a GP series. मतलब एक जीपी का समेशन का ये फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रही है, हम लोग को प्रूव करना है. तो मुझे एक बात बताओ तुम लोग, अगर मान लो मैं तुमको बोलूं कि एक सीक्वेंस जीपी में है या मैं बोलूं कि एक सीरीज जीपी में है, तो जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए? बताओ तो एक बार सबके. कॉमन रेशियो क्या होना चाहिए? कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए. सेम होना चाहिए, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट मतलब सेम, मतलब हर जगह कांस्टेंट होगा, है कि नहीं? तो हम लोग को यहाँ पे ये शो करना है कि कॉमन रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. नाउ टेल मी एवरीवन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द कॉमन रेशियो? टेल मी. मतलब कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो होता है कि नहीं? तो अगर मान लो मैं न्यूमरेटर में nth टर्म ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में कौन सा टर्म लेना पड़ेगा? मतलब n उससे ज्यादा नहीं, मतलब वो वाले टर्म से ज्यादा, मतलब उस टर्म के बाद वाला टर्म नहीं. जो टर्म न्यूमरेटर में ले रहे हैं उसके बाद वाला टर्म नहीं लेना चाहिए. डिनोमिनेटर में कौन सा लेते हैं हम लोग टर्म? उससे जस्ट पहले वाला टर्म. उससे जस्ट पहले वाला टर्म हम लोग डिनोमिनेटर में रखते हैं. तो अगर मान लो ये हो गया फॉर्मूला टू फाइंड कॉमन रेशियो. अब एक बात बताओ नेक्स्ट, सपोज मान लो एक जीपी का मैं ये टर्म्स लिख रहा हूं, ठीक है? सपोज आई एम राइटिंग फ्यू टर्म्स ऑफ एनी जीपी. Now tell me one thing, if I ask you what is the meaning of S7, S7 means यहां से लेकर के यहां तक का जितने टर्म्स है उसका ऐड करके जो रिजल्ट आएगा, मतलब सम.
अगर मान लो मैं इसमें से इतने टर्म्स का समेशन को हटा दूं तो क्या मिलेगा बताओ तो, व्हाट यू गेट? सर A7 डू यू थिंक दैट, यहाँ पे मुझे दिख भी रहा है, क्लियरली विजिबल है कि अगर मैं पहला 7 टर्म्स का समेशन निकाल के उसमें से पहला 6 टर्म्स का समेशन को सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या मिलेगा हम लोग को? क्लियरली मुझे कौन सा टर्म दिख रहा है? 7th टर्म दिख रहा है। सिमिलरली अगर मान लो मैं सपोज पहला 6 टर्म्स का समेशन निकाल के उसमें से अगर मैं पहला 5 टर्म्स का समेशन को हटा दूं तो क्या मिलेगा बताओ तो? ठीक है, देखो तुम यहाँ पे खुद विजुअलाइज करो, देखो कि S6 निकाल करके उसमें से अगर हम S5 को हटा दे तो क्या दिख रहा है मुझे? A6 बच रहा है, 6th टर्म बच रहा है यहाँ पे। सो कैन आई से दिस वे दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स में से अगर मैं उसमें सबट्रैक्ट कर दूं n-1 टर्म तक का समेशन तो क्या बच जाएगा बताओ तो? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? देखो मैं चाहता हूं कि तुम लोग ये रटो नहीं, ये लॉजिक को मैं इसीलिए इतने ज्यादा डिटेल में जा रहा हूं क्योंकि ये लॉजिक को समझो यहाँ पे देख करके कि कैसे आ रहा है। ये नहीं, अगर वैसा होता तो मैं डायरेक्ट ये चीज दे देता। सर पर ये रूल तो एपी में भी एप्लीकेबल है। हाँ तो एप्लीकेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों में है। हाँ क्योंकि लॉजिक तो यहाँ पे भी वही काम कर रहे हैं कि हम यहाँ तक का सम निकाल रहे हैं फिर यहाँ तक का सम हटा दे रहे हैं, ये मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। ना नेक्स्ट, तो यहाँ पे अगर मुझे मान लो अगर मुझे an चाहिए, ठीक है, बिकॉज आगे का मुझे कॉमन रेशियो जानने के लिए मुझे nth टर्म तो पता होना चाहिए। ठीक है, और nth टर्म निकालने के लिए मुझे Sn दिया हुआ है, तो लेट मी फाइंड आउट s of n-1। now just wait and see this particular way of doing this sum. After completing this sum, I'll explain you another method, but please make sure that you must know in 11th standard this particular way of doing the sum. Okay everyone? तो देखो यहाँ पे n-1 टर्म क्या होगा, तो देखो ये मैंने n की जगह पे क्या चीज से रिप्लेस किया, तो बस तुमको सिंपल यही करना है कि जहां तुमको n दिख रहा है उस n की जगह पे क्या रिप्लेस करना है, n-1। तो ये हो जाएगा 2 to the power n-1 minus 1। Is this clear to everyone? Okay, अब देखो, we know that an is Sn minus s of n-1। what is Sn? this is 2 to the power n minus 1, यहाँ पे पावर पे नहीं, minus 2 to the power n-1 minus 1। all right everyone, now let us open the bracket and simplify this expression। so minus plus minus minus plus minus and यहाँ पे minus to minus plus हो जाएगा, 1 gets cancelled। clear? अब इसको भी और फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे देखना एक बार। क्या मैं 2 to the power n-1 को 2 to the power n divided by 2 to the power 1 लिख सकता हूं? Is this clear to everyone? Yes sir. If I take 2 to the power n common, that will be better. So we have 1 minus half. Take LCM. Two minus 1 is 1. 2 to the power n into 1 is 2 to the power n. Now what is 2 to the power n divided by 2? Tell me, what is 2 to the power n divided by 2? Again we can write 2 to the power n minus 1, or I can leave it till here also। एक ही बात है, तुमको लगता है कि नहीं बात है कि छोड़ दे, एक ही बात है। अब इसके बाद हमको कॉमन रेशियो निकालना है, तो कॉमन रेशियो का मैंने भी एक फॉर्मूला दिया था, देखो nth टर्म डिवाइडेड बाय n-1 term। yes, so this is nth term, what will be n-1th term? It is 2 to the power how much divided by, because जहां पे n है उस जगह पे मैंने n-1 रिप्लेस किया है, तो जहां राइट साइड में n दिख रहा है वहां पे n-1 रिप्लेस कर देते। now we know that common ratio is nth term divided by n-1th term।
nth term is 2 to the power n divided by 2 and n minus 1th term is 2 to the power n minus 1 by 2. Cancel हो गया. What is 2 to the power n divided by 2 to the power n minus 1? Now just tell me what is x to the power n divided by x to the power n. X to the power n minus n. Clear? So 2 to the power n minus of n minus 1. On simplifying, we are getting n minus n plus 1. तो क्या मिला 2 के पावर पे? 2 के पावर पे 1 मिला. तो ये जो रिजल्ट आया, ये कॉमन रेशियो का जो वैल्यू आया, ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है बताओ? ये वैल्यू तुमको कांस्टेंट दिख रहा है? कांस्टेंट समझते हो तुम लोग, जो चेंज ना हो. और वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज हो जाए. तो बताओ तो ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है बताओ? कैसे मुझे तुमको पता चले ये कांस्टेंट? बताओ. तो उसका सीरीज निकालेंगे तो पता चल जाएगा. नहीं, तुमको कैसे पता चला कि ये कांस्टेंट है? दिख के कैसे पता चल रहा है कांस्टेंट? क्योंकि सर इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पे अगर हम मान लो, अगर यहाँ पे 2 टू द पावर n होता, मतलब ये वेरिएबल हुआ. क्यों? क्योंकि यहाँ n के जगह 1 लगाएंगे तो कुछ और आंसर मिलेगा, 2 लगाएंगे तो कुछ और आंसर मिलेगा, n के जगह 3 लगाएंगे तो कॉमन रेशियो कुछ और मिल जाएगा, n के जगह 4 लगाएंगे तो कॉमन रेशियो कुछ और मिल जाएगा. तो एक बात बताओ, क्या जीपी का कॉमन रेशियो चेंज होना चाहिए? तो फिर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब ये जो आया है वो. इज दिस क्लियर? आई नो दैट दिस मेथड इज लेंथी. तुमको कभी भी मल्टीपल चॉइस में ये कोई नहीं पूछेगा कि किस मेथड से कर रहे हो, बट मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव है तुम्हारे को ये लेवल तक प्रिपरेशन कराना नहीं. तुमको ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग दिस सम. सो दिस इज द स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग दिस सम. अगर तुमको कहीं भी लिखा जाए कि प्रूव दैट, सो दिस विल बी प्रेफर्ड. ऐसा नहीं कि तुम दूसरा मेथड करोगे तो तुमको रॉन्ग दे दिया जाएगा. वो भी मेथड राइट है, बट दिस इज बेटर वन. सो आई वांट एवरीवन टू कॉपी इट. लास्ट में आंसर ये लिख देना, इज कांस्टेंट. ठीक है, इज कांस्टेंट. देयरफॉर Sn equals to 2 to the power n minus 1 represents sum up to n terms of a GP. ये GP का ही समेशन का फॉर्मूला. सर अगर वेरिएबल आता तो क्या होता? See, alternative method almost, I mean few students ने जरूर किया होगा ये alternative method. मुझे पता है कि वो क्यों, क्योंकि ये तुमको लॉजिकली बहुत ही मतलब अच्छा लगा. मतलब अगर ये मेथड नहीं पता तो ऑब्वियसली तुमको वो पता होगा, क्योंकि तुमने दिमाग लगाया क्या कि अगर ये समेशन है, किसी एक जीपी का समेशन है, लेकिन उसमें तुमने क्या किया पता है? उस मेथड में, उस मेथड को क्यों नहीं मैं मानता हूं, बिकॉज सी यू हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट इट इज अ जीपी. मतलब तुमने पहले ही मान लिया कि वो जीपी है. बट मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने जनरल तरीके से प्रूव किया, और लास्ट में जो मैंने निकाला कॉमन रेशियो वो कांस्टेंट आया. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे देखना एक बार. जैसे यहाँ पे मान लो ऐसे दिया हुआ है, तो मुझे एक बात बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो फर्स्ट टर्म है और जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो दोनों इक्वल हो? ऑब्वियसली अगर मान लो कोई भी सीरीज, वो एपी हो या जीपी, वो सीक्वेंस एपी है या जीपी है. अगर मान लो पहला टर्म 2 है, 4 है, 8 है, तो अगर मुझे बोला जाए इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगा, ऑब्वियसली जो पहला टर्म है वही है. तो देखो पहला टर्म इज S1 itself, and what is S1? It is 2 to the power 1 minus 1, and the answer is 1. 2 to the power 1 is 2, and 2 minus 1 is how much? 1. If I ask you what is second term, तो तुमको पता है कि second term का मतलब क्या होगा? Second term means S2 minus S1. अभी मैंने बताया था कि ये लॉजिक यहाँ पे उसी ये चीज तो पता है, तो तुम लोग को ये चीज पता हो ना. यहाँ जो मैंने a टर्म जो निकाला था यहाँ पे इसी तरीके से तो निकाला था. Now what is S2? It is 2 square minus 1. And what is S1? If we simplify, we have 2. Now what is A3? It is how much? S3 minus S2. What is S3? It is 2 to the power 3 minus 1. And what is S2? It is 2 square minus 1. कैसे 2? ये तो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का 2 है. अगर मैं बोलूं व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो ऐसे बोलो 2 + 1 3.
या फिर n की जगह 2 लगा दो तो आंसर 3 आएगा। समझ में आया डिफरेंस? अब देखो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 8 minus 1 7 4 minus 1 and what is 7 minus 3? तो मतलब यहाँ पे हम लोग को कौन सा टर्म मिला? थर्ड टर्म। and what is third term? क्लियर है everyone? अब देखो मुझे पहला टर्म तो मिल ही गया, सेकेंड टर्म भी मिल गया, थर्ड टर्म भी मिल गया, इस तरह करके मतलब मुझे पता चल रहा है कि पैटर्न कैसे जा रहा है। बताओ 2 1 जा 2 2 2 जा, तो मतलब कॉमन रेशियो क्या होगा? लेकिन एक्चुअली इस मेथड को इसीलिए मैं अप्रोप्रिएट मेथड नहीं मानता हूं। ये मेथड कब काम में आएगा बताओ तो? अगर बोलेगा कि ये जीपी में है, कॉमन रेशियो क्या होगा? बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूं। शो नॉट शो, फाइंड द कॉमन रेशियो इफ this particular summation represents what? The sum of n term of a GP series. तो ये मेथड appropriate है, लेकिन ये मेथड अभी appropriate इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने जो कॉमन रेशियो निकाला है, तुमने सिर्फ पहला टर्म लेकर के, सेकेंड टर्म लेकर के और थर्ड टर्म लेकर के तुमने इन तीनों टर्म्स के बेसिस पे तुमने बोला है कि कॉमन रेशियो क्या है? 2। बट मैंने जो मेथड किया ये क्या पता है? ये जनरल मेथड है, मतलब जनरलाइज कर दिया मैंने। देखो तो कहीं मैंने निकाला है कि ये सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, कहीं मैंने निकाला थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म। मैंने क्या किया पता है? यहाँ पे मैंने nth टर्म बाय, और उससे क्या निकाला? कॉमन रेशियो। और वो क्या है? मतलब क्या है ये? कांस्टेंट। समझ में मेरी बात? डिफरेंस बात को समझ रहे कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं चलेगा? ठीक है, व्हाई दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट मेथड। इफ यू आर आस्क्ड टू शो दैट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला व्हिच इज सम अप टू n टर्म ऑफ अ जीपी और नॉट, जब बोला है तो ये मेथड क्यों एप्रोप्रिएट नहीं है? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो अब ये पूछो कि सर मैंने तो 3 टर्म निकाल ही दिया, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि इस पे भी डाउट कर रहे हैं? इसीलिए डाउट कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ 3 टर्म के लिए वो हुआ। मतलब मैं अगर मैं ये बोलूं कि आगे फिफ्थ टर्म, मतलब मैं एक बात का बात बोल रहा हूँ कि अगर फोर्थ टर्म कुछ और हो जाए जैसे 5, मतलब आई नो दैट निकालने के लिए तो मुझे पता ही चल रहा है कि फोर्थ टर्म निकालने के लिए इनके जगह 4 लगाना पड़ेगा और फिर माइनस करना पड़ेगा उसमें से। मतलब कहने का मतलब है अगर मुझे फोर्थ टर्म जानना हो तो मैं s4 माइनस s3 से तो जान ही सकता हूं। बट अगेन द क्वेश्चन इज वी आर एबल टू ऑब्जर्व जस्ट फॉर द फर्स्ट 4 टर्म्स। मींस माय ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन जो ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फर्स्ट टर्म, second term, third term and the fourth term which we calculate. So do you think that it is the appropriate method? No, because my observation that it is a GP is only on the basis of the first 4 terms or the first 5 terms which we are calculating. But here what I am doing, I am generalizing and I am showing that the value of R which I have obtained is a constant and that's why it is a GP series. But हाँ, अगर multiple choice में है तो तुमको देखने को तो जाने रहे। अगर मल्टीपल चॉइस में कभी भी ये तो नहीं पूछा जाएगा शायद, आई थिंक इस तरह से पूछा जाएगा तो पता है। अब ये बात तो नहीं बोलोगे सर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? क्या होगा? कर देना इस तरीके से प्रूव। ठीक है, सो यू नो बोथ द वेज। सो अगर जीपी का रेशियो निकालना होगा तो मैं ये वाला मेथड प्रेफर करूंगा, शॉर्टकट, क्योंकि तुमको बोल दिया ना कि जीपी है तो तुम क्यों तमाशा कर रहे थे? बात समझ में मेरे बात? अगर तुमको बोल दिया जीपी में है तो तुम इतना लंबा क्यों करोगे? तुमको पता है जीपी में तो तुम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म निकालो या सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म निकालो, डिवाइड कर दो, मतलब दोनों का रेशियो निकाल दो। आई मीन ओके, तो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सो आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन हियर नाउ। सो नेक्स्ट सम नाउ, नॉट द वन जो मैंने होमवर्क दिया था, डाउट्स नहीं है। अब हम लोग नया सम स्टार्ट करें, बोर्ड पे देखें। ओके, so suppose you are given a series. I will not name what series. Let me write down first. And so on to n terms. कितने सारे टर्म्स हैं? ऐसा n टर्म्स हैं। अब एक बात बताओ तुम लोग, मैंने बोला सीरीज, मैंने ना मेंशन किया एपी ना मैंने मेंशन किया जीपी। तुम लोग आइडेंटिफाई करके बताओ। बट याद रखना, कभी भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, पहले सोचो फिर बोलो। टेल मी द आंसर। एपी है या जीपी है? जीपी तो नहीं है। जीपी तो नहीं है तो एपी है? नहीं। एपी भी नहीं है तो क्या है फिर? मतलब ना तुम, मतलब तुम्हारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से ना ये एपी में है और ना ही ये जीपी में है। एवरीवन अग्रीज और नॉट? टेल मी।
अग्रीड एवरीवन? बिकॉज अगर मान लो ये एपी में होता तो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए था। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है तो ये एपी तो है नहीं, और जीपी अगर होता तो कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए था। व्हाट इज 33/3? व्हाट इज 333/33? नॉट पॉसिबल। आई मीन आंसर इन टर्म्स ऑफ लाइक लेवल जो मुझे मिला वो तो नहीं है, कुछ और है। अब क्वेश्चन यहाँ ये राइज होता है कि क्या ये सीरीज है? सीरीज बिल्कुल है। सीरीज मतलब होता है क्या? एक पैटर्न को फॉलो करता है। यहाँ पे एक पैटर्न क्या है? 3 3 3 3 3। यहाँ पे क्या है? 3 3 3 3। उसके बाद क्या आएगा? 5, मतलब 3 3 ऐसे करके 5। ठीक है, तो मतलब एक चीज तो है कि ये सीरीज है, बट ये एपी नहीं है ना ही जीपी है। तो हम क्या करेंगे? ध्यान देंगे, इसको बनाया जा सकता है। इसको मतलब इसको हमारे पास, अब देखो हम लोग के पास अगर कोई और चीज तुम लोग को पता नहीं है, मतलब सिलेबस में नहीं है, तो ऑब्वियसली अगर हमारा जो डोमेन है, मतलब जो डोमेन है वो क्या है? एपी या तो जीपी हम पढ़ रहे हैं कि नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। सो एवरीवन हैव अ लुक हियर, डोंट कॉपी अ सिंगल लाइन। नाउ फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब में से 3 कॉमन ले लेंगे। So first of all, let us take 3 common here. If I take 3 common, this is left. से नंबर ऑफ टर्म्स में थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। जितना टर्म है, टर्म्स मतलब सोचते हैं ना, जैसे तुम लोग इतना हो और तुम्हारे से अगर मान लो तुम्हारे पास से हर कोई से बैग ले लिया, तो तुम तो नंबर ऑफ टर्म्स तो उतना ही रहेगा, मतलब जितने स्टूडेंट है उतने ही तो प्रेजेंट रहेंगे। बट अब क्या है, इन लोगों से कुछ ना कुछ मैंने ले लिया। क्या लिया? सबसे बड़ा पड़ लिया, 3 कॉमन फैक्टोरियल। समझ में बात? मतलब लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स उतना ही रहेगा, n टर्म्स ही होगा। अब नेक्स्ट, फिर भी यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। कॉमन लेने के बाद भी क्या होगा कि बदला नहीं, मतलब ना एपी है ना जीपी है। अब देखो हम सोचेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के साथ साथ नहीं, मल्टीप्लाई करने के बाद वो कुछ सीक्वेंस सीरीज में आ जाए। तो 9 मैंने सोचा क्यों, तुमको अभी समझ में आएगा एक स्टेप बाद। So if I multiply 9 to every term, again the number of terms will remain same. If I 9 multiply 9, इससे फायदा ये होगा, देखो मैंने 9 मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए मैंने 9 से डिवाइड किया। देखो क्योंकि हमारे पास एक एक्सप्रेशन को चेंज करने का अधिकार नहीं है, मतलब I don't have the right to change the expression, but I can write equivalent expression. Equivalent मतलब उसके जैसा, equal to that, but not different. I cannot change the expression. So I have written equivalent. Now why I have chosen 9? Because 9 multiply करने से ये जो टर्म्स है ये ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि उसका एक मुझे दिखने लगेगा एक पैटर्न फॉर्म। देखो हम बता रहे क्या 10 को हम क्या 9 को क्या लिख सकते हैं बताओ तो? 10 minus 1। देखो ध्यान से 10 minus 1, 10 minus 1। 99 को 100 minus 1। क्या मैं 100 नहीं लिख के 10 स्क्वायर माइनस 1 लिख दूं तो चलेगा? बात बराबर हुआ कि नहीं बताओ तो? 9 को 10 minus 1, पहला टर्म को 10 to the power 1 minus 1, सबको सब तरीके से सोचना पड़ेगा। सेकंड टर्म को 10 to the power 2 minus 1, सेकंड टर्म क्या बोल रहा हूं मैं? सेकंड टर्म को 10 to the power 2 minus 1। थर्ड टर्म को क्या लिख रहा हूं मैं? पता चल रहा है ना, पैटर्न तो समझ में आ रहा है ना कि ये पैटर्न से जा रहा है। देखो जब दो तरीके से सोच रहे हैं, 9 को 10 minus 1, 99 को 100 minus 1, 100 डायरेक्ट करके 10 स्क्वायर minus 1 लिख दिया, इसको 1000 minus 1, एक ही बात है 10 to the power 3 minus 1। अब एक बात बताओ, अगर मैं पहला टर्म को 10 to the power 1 minus 1 लिख सकता हूं, सेकंड टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड as 10 square minus 1, थर्ड टर्म कैन बी रिप्रेजेंटेड as 10 cube minus 1, इसके बाद वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं? 10 to the power n 10 to the minus power 1। 4 minus 1। अब तुम एक बात बताओ, nth टर्म क्या होगा? 10 to the power n minus 1। अच्छा ये सभी को दिमाग में ये बात गया कि ये चीज समझ में है, मतलब कि ना ये ऐसा होगा, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया तो होगा, ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा तो क्लियर हुआ कि पहला टर्म 10 to the power 1 minus 1, सेकंड टर्म 10 square minus 1, थर्ड टर्म 10 cube minus 1, तो ऑब्वियसली उसका nth टर्म क्या होगा? 10 to the power n minus 1। अब देखो ये इससे फायदा दो हुआ, दो फायदा क्या होगा कि अगर मैं इस पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और ये कौन सा टर्म है? nth टर्म। डोंट से सर ये फोर्थ टर्म है, नहीं, इसके बाद फोर्थ टर्म है, उसके बाद फिफ्थ टर्म है,
और बहुत सारे टर्म्स है, और ये कौन सा टर्म है? nth टर्म। तो यहां अगर हम हर एक टर्म का 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 टू द पावर n को ऑब्जर्व करें बढ़िया से, तो मुझे लग रहा है कि ये जीपी में है, मुझे दिख रहा है कि जीपी में है। कैसे? 10 के बाद 10 स्क्वायर के बाद ऐसे करके जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसको अलग कर देते हैं। 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब अलग कर दिया मैंने, ठीक है? एक ब्रैकेट में लिख दो, एक पैटर्न मिल जाएगा। बचा क्या बताओ तो? नहीं, -1 कितना बार? ऐसे कितना बार? n टाइम्स नहीं, n टर्म्स। टाइम्स में क्या, टाइम्स और टर्म्स में फर्क क्या है? टाइम्स जब प्रोडक्ट फॉर्म में होता है, टर्म्स जब ऐड या डिफरेंस फॉर्म में होता है। कितने लोग, मतलब कितने टर्म्स है यहाँ पे? कितने टर्म्स है यहाँ पे? 3। कितने टर्म्स है यहाँ पे? 1। समझ में बात? लेकिन कितना फैक्टर है? 1 2 3 ऐसे, मतलब इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। समझ में तो बात? तो वैसे ही यहाँ पे हम क्या करेंगे? -1 अप टू n टर्म्स अलग हो गए। अब ये कैसे सीरीज है? जीपी। इसका पहला टर्म क्या है? इस जीपी सीरीज का पहला टर्म क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? कॉमन रेशियो ग्रेटर देन 1 है। मुझे सम निकालना है, ऐड करना है ना। ऐड करना है तो कितने टर्म्स को ऐड करना है? कितने टर्म्स को? 2 4 5 कुछ कितने टर्म्स? n टर्म्स को ऐड करना है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एंड द फॉर्मूला इज a r to the power n -1 divided by r minus 1. Yes or no everyone? Check your marks. Is this clear to everyone? Now if I take minus sign common from these terms here, we find -1 ये बार बार लिखा जा रहा है। इसमें से अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो 1 + 1 + 1 ये कितना बार है? कितना बार एडिशन फॉर्म में? ये 1 n टर्म्स, n बार है। समझ में आया तो बात? अब देखो मुझे एक बात बताओ, 1 को अगर मैं 3 बार ऐड करूं तो 1 का रिजल्ट कितना होगा? ये 3 1 को ऐड करने से क्या है? 4 बार करने से, 5 बार ऐड करने से, तो अगर हम n बार ऐड किए तो क्या है? n आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 3 to the power 9, I'm sorry 3 by 9, not 3 to the power 9, 9 minus 10 minus 1 is 9, ये n लिख सकते हैं। सब कंप्लीट हो गया। अब मैं एक बात बता दूं, अगर यहाँ पे वही 1 1 1 ना होकर के 2 + 2 + 2 3 बार होता तो व्हाट इज 2 + 2 + 2? 6 तो पता है, मतलब 3 to 2 है कि नहीं? 3 to 2 मतलब 2 + 2 + 2 3 बार ना लिख करके हम 3 to 2 लिख सकते हैं। 4 बार होता तो 4 into 2, n बार होता तो 4 into 4 into n। समझ में आया बात? क्या बोला मैंने? सॉरी एक सेकंड। अगर मान लो 2 3 बार है तो 3 into 2, 4 बार होता तो 4 into 2, n बार होता तो n into 2, मतलब 2 into 2। समझ में आया बात? 2n। मैंने एक्चुअली में 4 में उस समय सोचा या 4 लिखा हुआ। ऑलराइट एवरीवन, आई होप इट इज क्लियर। सो दैट्स व्हाई 1 यहाँ पे कितना बार है? n बार है, तो 1 into n कितना होगा? अब देखो तुमको मैं ये भी बताता हूं कि ये आंसर जो तुमने किया है वो 100% करेक्ट है या 100% रॉन्ग है। कैसे हम लोग पता करेंगे? देखो मैं तुमको बता रहा हूं। पहला 2 टर्म्स को ऐड करो, कितना आ रहा है? 36। ये क्या है बताओ तो? ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स है इस सीरीज का, जीपीएपी नहीं, इस सीरीज का। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम n के जगह 2 लगाएं तो आंसर क्या आना चाहिए? आना चाहिए ना। तो n के जगह हम 2 लगाते हैं एक बार। लेट्स पुट n equals to 2. If I put n equals to 2, what is 10 square minus 1? I mean, we have got 3 by 9. We have got 3 by 9. 10 square is 100. 100 minus 1 is 99 by 9 is 11 into 10 is 110. Minus n. What is n? 2. What is 110 minus 2? 108. What is 108 by 9? What is 12 into 3? 36. तो ये देखो पहला 2 टर्म को ऐड करके 36 आ रहा है। मतलब कोई ऐसा नहीं बोल सकता है कि आंसर रॉन्ग है। तुम लोग खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो आंसर रॉन्ग है या राइट है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इतना मैं इस सब में क्यों टाइम लिया? बिकॉज ये सब एग्जाम के लिए, आई मीन कोई भी बोर्ड एग्जाम, कुछ भी एग्जाम हो, कोई भी स्कूल का एग्जाम हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये सब में बहुत कंसेप्ट आ रहे हैं। इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की क्या जरूरत है क्या? 3 by 9 कितना हो गया? 1 by 3 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 by 3। चलो यहाँ तक पहले कॉपी कर। एवरीवन कॉपी कर दीजिए।